Okay, so class 12, ISC and CBSC. I'm here to address few things to you people. First of all, I'm gonna start with a fresh new chapter named Controlling, जो आपके बहुत सबका directing के बाद वाला chapter है. Again, I really want to tell you people that exams है आपके, so recording आपको मिल जा रही है, but please don't make it a habit, okay? Because you people are not regular in the class and I'm very disappointed, trust me. Now, कंट्रोलिंग चैप्टर शुरू करने से पहले जस्ट वांट टू एड्रेस यू फ्यू मोर थिंग्स. आपके जितने भी प्रीवियस लेसन्स हो चुके हैं सबके नोट्स एंड सबके क्वेश्चन आंसर्स यू हैव ऑलरेडी, सो आई वांट यू पीपल टू रिकॉल दोज थिंग्स एंड नॉट जस्ट गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन, ताकि पीछे वाली चीजें आप भूल जाओ. सो आई डोंट वांट दैट टू बी हैपन. सो प्लीज मेक श्योर कि जितने भी अब आपके एग्जाम मतलब आपके हाफ ईयरली या फिर जो भी आप प्री सिलेक्शन बोलो उसके बाद के जितने भी टाइम हमारे पास बचता है, उसके बाद का जितना भी टाइम हमारे पास बचता है, वी आर गोना रिवाइज थिंग्स एंड वी आर गोना मूव फॉरवर्ड. सो मेक इट अ हैबिट, रिविजन एंड देन मूविंग फॉरवर्ड, ओके? बिकॉज ब्रेक इंपॉर्टेंट है. ना कंट्रोलिंग स्टार्ट करने से पहले आई वांट टू टेक माय ट्रेडिशन या कस्टम जो भी मैं भी स्टार्ट की हूँ. एंड व्हाट इज दैट कंट्रोलिंग टॉपिक आपको दिया गया है. टेक आउट योर नोट पैड, टेक आउट योर पेन पेंसिल, वॉट एवर यू हैव. Pause the video right here, okay, when I'll say, and think what controlling should be. Think why in an organization controlling is important. Just pause the video, write. कुछ भी हो सकता है. I'm not gonna analyze you on the basis of any XYZ thing, but of course you need to analyze yourself कि तुम्हारा thought process कहाँ जा रहा है. Is it going in the correct way or not? Okay. So what you need to do, you need to take your notepad, you need to take your diary, pen, pencil, whatever you have, stationaries. Pause the video up, start writing how controlling is helpful. What do you think about controlling? What do you know about controlling? Okay. So your time starts now. Pause the video right here. Okay. I hope आपने लिख लिया होगा. Welcome back. Now, whatever you have written, keep it aside. Just think. You can see the screen. आपको कुछ भी दिख रहा है उससे रिलेटेड, चलो और इजी करते हैं. मैं बोलती हूँ. देखो, एक ऑर्गेनाइजेशन है. ऑर्गेनाइजेशन में हमने कुछ प्लान किया है कि हमें XYZ चीजें करनी है. अब उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग हमने काम को बांटा है स्टाफ को. उसके बाद हमने लोगों को डायरेक्ट किया है कि यू नीड टू डू XYZ थिंग्स, यू नीड टू डू दीज थिंग्स. हमने उन्हें बताया है कि इफ यू डू दीज थिंग्स, आपके इस एफर्ट की वजह से ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्स, अपने ऑब्जेक्टिव्स को कैसे अचीव करेगा. ओके. हमने लीडरशिप स्किल सीखी, हमने कम्युनिकेशन का इम्पोर्टेंस समझा. हमने देखा दैट हाउ मॉरल मतलब मोरल, हाउ मोटिवेशन हेल्प्स इंडिविजुअल, हेल्प्स एम्प्लॉयज टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशंस गोल एज वेल एज इंडिविजुअल गोल्स. सो ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी पढ़ी. अब क्या, when I planned, when I chose people who will work in my organization, when I allotted them the work, when I organized everything up, okay. Now, when they are doing the tasks, I really need to keep a check if they are doing it correctly or not, right? That means the subordinate जिनको मैंने काम दिया है, are they performing the task as per my instruction, as per the direction, as per the organizational structure? Are they doing it correctly or not? That means controlling is not the end. Okay, it's not. It's never the end. It's just taking the cycle of this whole process back to planning. That is, I'm gonna see if things are going correct or not. If there is any lapse, if there is any loop, okay, I'm gonna take it again. I'm gonna plan that thing again. I'm gonna, repeat the task again, so that चीजें रुके ना, flow में चलती रहे. Okay, you can see here controlling का पूरा definition. Okay, मैंने जो कि बोला वो यहाँ पे लिखा हुआ है. I just want you people to give a read, thorough reading. जो मैं बोलती हूँ हमेशा, दैट कभी भी आप एक आंसर लिखो तो आप सिर्फ आंसर नहीं लिख के आओगे, एक प्रोफेसर का डेफिनेशन भी लिख के आओगे. और यहाँ पे लकीली एक ही है, कुंडीजन ओडोनल. ओके, फाइन.
So जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है, I've already told you how is controlling important, कैसे control, what is basically controlling. Now depth में importance हम लोग point wise समझेंगे यहाँ पे. Fine, you can see the points here. Yeah. ना कंट्रोल इंडिस्पेंसिबल है, जैसे कि रिस्क इंडिस्पेंसिबल है किसी भी बिजनेस में, वैसे कंट्रोल भी है. If I'm running an institution, I have people working under me. I don't control their actions according to my organization's objective. Will they be able to achieve the desired goals? The answer is absolutely no. हर एक इंसान अच्छा नहीं होता है, right? And of course, why will that person and how will that person know exactly what I want to? I'm paying. That means I need to tell na where and how I see my institution, right? So these are the things you need to take care of. So it's indispensable. I need to continuously monitor things. Now, the first point being accomplishing organizational goals. See, it is very important. Of course, I told in the earlier stage only, controlling function जो है पूरा का पूरा, that what does they see कि हमने काम दिया है, काम कैसा चल रहा है. इफ ऐसा चल रहा है तो इसको और बूस्टअप कैसे किया जाए, और अगर डिजायर्ड गोल से थोड़ा नीचे चल रहा है तो कहाँ लैग कर रहे हैं. ओके, वी नीड टू सी. फिर उस चीज के लिए वी नीड टू प्लान. आई ऑलरेडी टोल्ड द साइकिल पार्ट. दिस इज द कंटिन्यूएशन ऑफ इट. जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स. देखो, कोई भी चीज एक बेंचमार्क सेट करता है. फाइन, किसी भी चीज को चेक करने के लिए भी जरा बेंचमार्क. ऑफ कोर्स यू हैव 100 मार्क्स का पेपर और 80 मार्क्स का पेपर. ये पासिंग मार्क्स इज 35 और 40. डिफरेंट करता है, वेरी करता है अलग अलग स्कूल्स के ऊपर. बट बोर्ड्स में यू हैव 35-40 मार्क्स का बेंच मार्क सेट. ओके, दैट मीन्स आपको उतना लाना ही पड़ेगा. देन यू विल बी अवॉर्डेड विद अ पास सर्टिफिकेट और एल्स यू वोंट बी. ओके, ना दैट इज द कट ऑफ. तब हमें समझ आता है कि एक बच्चा अच्छा इस लेवल में है तो ये एवरेज है, इससे ऊपर है तो अबव एवरेज, एवरेज है, इससे नीचे है तो बिलो एवरेज है, स्टार परफॉर्मर है किस मार्क्स के अकॉर्डिंग. सो ये सब कैसे पता चलता है? वी नो अ बेंचमार्क देयर. उसी तरीके से व्हेन वी एनालाइज द वर्क वी कैन नॉट mark things up. We need to set standards, and setting standards is judging the accuracy. Setting standard is seeing that XYZ things are going in a right process, wrong process, okay process, normal process. What are these things? Of course, checking things are very important. So judging accuracy and standards is only possible because of controlling. Again, we have making efficient use of resources. Now, what does this point? It's very important point. Now, हमें पता है हमारे पास limited resources होते हैं. We don't have unlimited resources. Okay. Now, taking out the best possible thing in the limited one is called smart thing. It's called managing. It's called manager ka duty. And controlling is really very much important because we need to keep a check that if people, laborers, employees are using XYZ resources, are they using it into an efficient and effective manner or not? Right? See, this word, when you started studying commerce, these two words must be the baseline for you. Then we have what? We have improving employee motivation. Now, what does this mean? मैंने पहले ही बोला, लास्ट प्रीवियस चैप्टर में आपने पढ़ा था, इनफैक्ट उसके पहले वाले चैप्टर में आपने पढ़ा था डिफरेंट थिंग्स अबाउट लीडरशिप, कम्युनिकेशन, मोटिवेशन, मोरल. आपने डिफरेंट चीजें पढ़ी थी, राइट? नाउ जब तक किसी का कॉन्फिडेंस बूस्ट अप नहीं होगा, कोई मोटिवेटेड नहीं रहेगा किसी काम के लिए, डू यू रियली थिंक दैट पर्सन विल बी एबल टू वर्क फॉर 9 hours a day? Of course not. There is a sort of motivation that we wake up from our bed, we go to office, we go to work, we go to school, we do anything. There is a sort of motivation in us. अगर urge नहीं रहेगा अंदर से कुछ भी करने को, तो we won't be able to do any single thing. That means motivation is inbuilt, and उसको कैसे boost करना है, that is very important. And good control system ensures that employees know well, fine, what they are expected to do. If you know where my expectation stands, you'll obviously try to stand at least beside that. Fine. Now, order discipline कैसे होगा? ऐसे तो कोई सुनेगा ही नहीं बात हमारा अगर ढंग का एटमॉस्फेयर नहीं रहा. Fine. We need to control things. ऑफिस में हर्डल्स लिए जाते हैं. Okay. ऑफिस में चेक रखा जाता है that people are doing work as per directed part or not.
That means आपको देखना पड़ेगा things are going into a proper discipline or not. Fine. See here what it's written. The box explains how as an import-export company was able to track dishonest employee by using their control system. बहुत सारी चीजें होती हैं which we need to see. देखो अपने सीसीटीवी कैमरास लगे होते हैं, अलग अलग चीजें देखी जाती है कि कहीं कोई डिसऑनेस्ट बिहेवियर ना कर रहा, कोई अनएथिकल काम ना कर रहा. ये सब कैसे पॉसिबल है? इट्स पॉसिबल बिकॉज ऑफ प्रॉपर कंट्रोलिंग. वो किसी भी माध्यम से हो सकती है, सिक्योरिटी पर्पस के लिए कुछ भी लग सकता है. देन यू हैव डिफरेंट चेकिंग प्रोसेस, यू हैव एनालाइजिंग प्रोसेस. फैक्ट्रीज में क्या होता है, एक इंडिविजुअल के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी जाती है. हर एक काम जैसे नेक्स्ट प्रोसेस में जाता है, पीपल चेक इट इफ इट्स ओके और नॉट, एंड देन वो लोग प्रोसेस स्टार्ट करते हैं. तो ये ऑटो चेक हो गया. माई वर्क यू आर चेकिंग, योर वर्क समवन एल्स इज चेकिंग. फाइन. तो ये सब किसका पार्ट है? ये सब कंट्रोलिंग का पार्ट है. फैसिलिटेटिंग कोऑर्डिनेशन सेक्शन action. Controlling provides direction to all activities and efforts for achieving organizational goal. Each department and employer is governed by predetermined standards. Of course, there are standards set, जिसकी basis पे आपको analyze किया जाता है, जिसकी basis पे आपको देखा जाता है. Fine. Now, actions को monitor करना और इस तरीके से लेकर के आना कि harmonically चीजें चले. It's also the part of what? Controlling. Limitations of controlling पे आ जाते हैं ना. देखो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ऑफ कोर्स कंट्रोलिंग इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे प्लानिंग है और बाकी के फंक्शंस हैं. बट ऑफ कोर्स कुछ लिमिटेशंस हमें पढ़ने ही पड़ते हैं. हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, राइट. फर्स्ट वन इज डिफिकल्टी इन सेटिंग क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड्स. अब देखो दो चीजें होती है, एक क्वालिटेटिव और एक क्वांटिटेटिव. क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड्स को सेट करने में बहुत ही ज्यादा डिफिकल्टी होती है, क्योंकि see standards cannot be defined in quantitative terms. It's always a quality, right? It's not quantitative. So उसके ऊपर स्टैंडर्ड्स डिफाइन करना इज रियली वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज हर एक इंसान के अलग अलग स्टैंडर्ड्स होते हैं, एंड कीपिंग अ बेंचमार्क आउट ऑफ इट वुड बी कहीं ना कहीं बायस्ड. सो ह्यूमन नेचर के संग हमें करना थोड़ा सा दिक्कत होता है. इट्स कॉम्प्लेक्स प्रोसेस ऑफ कोर्स. लिटिल कंट्रोल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स. आपने ऑलरेडी बहुत पहले से पढ़ा है इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स के बारे में. कुछ चीज़ें हमारे इंटरनल फैक्टर्स के दायरे में आती है जिसके अंदर हमारा थोड़ा बहुत कंट्रोल होता है, जैसे हमारे स्टाफ, हमारे ऑफिस बिल्डिंग के लोग, या people which belong to our organization internally and the management has control over it. But again, external factors यानी government tax policies, customer reviews, creditors, हमारे ऊपर इनका कैसे चलेगा, पॉलिसीज, टेक्नोलॉजीज, ये सारी चीजें इट्स वेरी बिजनेस डायमेंशंस में आपने जो पढ़ा भी है. एक्सटर्नल फैक्टर्स में हमारा कंट्रोल नॉट पॉसिबल. सो कंट्रोलिंग ओनली हाफ टर्म एंड बाकी के ऊपर हमारा कंट्रोल ना भी होना, आधे कंट्रोल होने से होगा क्या, थोड़ा सा वो कंसिस्टेंट हो जाता है. रेसिस्टेंस फ्रॉम एम्प्लॉयज. देखो एम्प्लॉयज आर ऑलवेज रेसिस्टेंट टू चेंज. दे आर वेरी वेरी नॉट फ्लेक्सिबल, कांस्टेंट बोल सकते हैं. वो लोग नहीं ले पाते हैं चीज़ों को बहुत जल्दी जल्दी, तो कंट्रोल कहीं ना कहीं रेसिस्ट करते हैं एम्प्लॉयज. दे फील अनकंफर्टेबल व्हाइल डूइंग वर्क और दे फील सॉर्ट ऑफ प्रेशर. सो ऑफ कोर्स वो रेस्ट्रिक्शन देखते हैं उनकी फ्रीडम के ऊपर. फॉर एग्जांपल एम्प्लॉयज, ठीक है, व्हेन दे आर वर्किंग उनके ऊपर सीसीटीवी कैमरा से एक वॉच रखा जा रहा है. नाउ दिस माइट बी नॉट टेकन इन अ वेरी पॉजिटिव मैनर बाय द एम्प्लॉयज, तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा रेसिस्टेंट दिखते हैं. कॉस्टली अफेयर. ऑफ कोर्स कंट्रोल अगर आप कर रहे हो तो इट इन्वॉल्व्स कॉस्ट, लाइक काफी एक्सपेंडिचर, टाइम, सब चीज यानी पैसे, टाइम, हर एक जगह से एक्सपेंडिचर लगता है, विच इज ऑफ कोर्स कॉस्टली. मैनेजर्स को देखना पड़ता है कि वो जो भी ऑपरेशंस करने वाले, जिसकी मेजर के थ्रू कंट्रोल करने वाले हैं, वो जब वो इंस्टॉल कराए तो क्या खर्चा पड़ेगा. यहाँ पे देखो एग्जाम्पल दिया, बॉक्स ऑन कंट्रोल सिस्टम at FedEx gives overview of the control. एक बड़ा सा बॉक्स जहाँ पे डिफरेंट चीजें आपको दिख रही होती हैं, सीसीटीवी कैमरा की फुटेजेस जो भी, तो वो भी अगर आप इंस्टॉल करना चाहेंगे, दैट्स नॉट ऑफ 1-2 रुपीज, ओके, एंड नॉट 1-2,000 रुपीज ऑल्सो. इट्स अ वेरी वेरी बिग एक्सपेंडिचर. बट अगेन अगर आपको मॉनिटर करना है देन यू हैव ऑप्शंस. ना रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग. देखो एक फर्स्ट पॉइंट में मैंने बोला था कि एक साइकिल है, कि जहाँ पे भी लैप्स हो रहा है, जहाँ पे भी पता चल रहा है कि लूप है, what people tend to do, people start planning again for that particular portion. Okay, now planning and controlling are inseparable twins. Fine. क्योंकि
जहाँ कंट्रोल आप करते हो, जहाँ आपको चीजें लगती है सही से नहीं चल रही, आप फिर से प्लानिंग शुरू कर देते हो। आपको लगता है ये क्वालिटी को मैच कर रहा है, आप उसको बढ़ाने के लिए फिर से प्लानिंग शुरू कर देते हो। आपको दिखता है कि बहुत दिन से ग्रोथ नहीं हुआ, आप प्लानिंग करना शुरू कर देते हो। आप हर एक चीज के संग यू इजिली कनेक्ट विद प्लानिंग। ओके, दैट्स व्हाट रनिंग ओवर हियर। या जस्ट गिव इट। आ जाओ इधर, कंट्रोलिंग प्रोसेस पे आ जाओ। जो मेन पार्ट था, आई ओनली ऑलरेडी टोल्ड यू, यू जस्ट नीड टू सी इट वंस अगेन। कंट्रोलिंग, पॉज करके एक बार ये पूरा पैराग्राफ पढ़ लो। इफ यू हैव एनी डाउट्स, यू नो माय नंबर, यू नो हाउ टू कांटेक्ट मी, इजीली कांटेक्ट। ना कंट्रोलिंग प्रोसेस ध्यान से देखेंगे। कंट्रोलिंग प्रोसेस एक बहुत ही ज्यादा सिस्टमैटिक प्रोसेस है। नाउ व्हाट आर द फॉलोइंग स्टेप्स व्हिच यू कैन सी इन द कंट्रोलिंग। याद है आपको इसके पहले की भी जितने भी फंक्शंस अपने पढ़े, सबके सबके आपने ऐसे कुछ स्टेप्स या प्रोसेस देखा है। आपने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में भी आपने देखा था, इवन डायरेक्टिंग में देखा था, यहाँ पे भी है। ध्यान से, सबसे पहला सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। जैसे कि बोला गया, एक बेंचमार्क आपको सेट करना पड़ेगा, एक स्टैंडर्ड तो सेट करना पड़ेगा। अगर आपको पता ही नहीं कि ओरिजिन क्या है, तो आप कंपेयर कैसे करोगे? कंपैरिजन के लिए यू मस्ट बी हैविंग समथिंग इन योर हैंड, राइट? सो यू मस्ट सेट अ स्टैंडर्ड आउट ऑफ इट। स्टैंडर्ड कुछ भी हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल XYZ सेल्स इन अ मंथ, है ना, या कोई टीम है तो इतना सेल्स वीक फॉर अ टीम, ऐसा कुछ भी आप सेट कर सकते हो। ओके, सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स की क्वालिटी आए भी तो इस XYZ तरीके का क्वालिटी आए, या अगर सपोज जैसे टाइपिंग में होता है, फाइन, टाइपिंग के लिए इफ आई वांट एक्यूरेसी ऑफ टाइपिंग, आई वुड से 25 वर्ड्स पर मिनट विद 90% एक्यूरेसी। समझ रहे हो स्टैंडर्ड्स कैसे सेट होते हैं? मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। अब देखो, काम तो हो रहा है। अब जब काम हो रहा है, देयर मस्ट बी समथिंग। समथिंग इन व्हाट सेंस? समथिंग इन द सेंस कि जब भी मैं काम करवा रही हूँ, तो उस काम को मुझे एनालाइज करना है, तो उसको मैं किससे करूंगी? ओरिजिन से, राइट? यानी कि ओरिजिन वाले जो स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस है, उसको मैं कंपेयर कैसे कर रही हूँ? एक्चुअल परफॉर्मेंस से। सो आई नीड टू मेजर, फर्स्ट ऑफ ऑल आई नीड टू सी क्या वो सही बैठ रहा है, नहीं बैठ रहा है, तो फिर आई नीड टू मेजर कितना कम कितना ज्यादा। एनालाइजिंग डेविएशंस, अगर कहीं पे डेविएशन हो रहा है, देन आई नीड टू एनालाइज दैट थिंग अप, एंड अगेन टेकिंग करेक्टिव एक्शन। जैसे ही मैं देखूँ कि कुछ गलत है, कुछ नहीं है, आई नीड टू टेक करेक्टिव एक्शन। इसका एक बहुत सिंपल सा फ्लो चार्ट आप बना सकते हो, वांट टू, राइट? हाउ? फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू सेट स्टैंडर्ड्स। जैसे आपने स्टैंडर्ड सेट किया, ठीक है, देयर इज अ स्टैंडर्ड विच यू हैव सेट, सपोज हियर, ओके, एंड अगेन आपका जो परफॉर्मेंस है, सपोज वो यहाँ है, तो यू नीड टू कंपेयर द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द स्टैंडर्ड सेट। आप अगर देखो कि डेविएशन हो रहा है, हमें दिख रहा है कि इतना डेविएशन हो रहा है, इतना डेविएशन हो रहा है, we can see. Now what is the reason of the deviation? If we get to know, start taking corrective actions. We can make a very easy flow chart out of it ताकि आपको याद रहे फ्यूचर में। अब यहाँ पे देखो, एक एक स्टैंडर्ड, जो एक एक स्टेप जो आपको बोला गया, उसको एक्सप्लेन किया गया है। आई ऑलरेडी टोल्ड यू हाउ इट इज, आई एम नॉट गोना वेस्ट टाइम इनटू इट, बट ऑफ कोर्स आई एम गोना टेक यू एंड गोना मार्क फ्यू थिंग्स फॉर यू। आपको दिख रहा है यहाँ पे बेंचमार्क वर्ड, राइट? आपको सेट करना पड़ेगा एक बेंचमार्क, जिसकी वजह से आप काम कर सकते हैं। यहाँ पे एक इंस्टेंस दिया हुआ है, स्टैंडर्ड जो सेट होते हैं वो किस किस टर्म्स में हो सकते हैं, मैंने आपको एग्जांपल भी दिया है। यहाँ पे देखो, कॉस्ट जो इनकर हो रहा है, जो भी काम के लिए, प्रोसेस के लिए कॉस्ट लग रहा है, उसके बेसिस पे, रेवेन्यू उसके बेसिस पे, कितना प्रोडक्ट्स है उसकी यूनिट्स के बेसिस पे, कितना बेचेंगे उसकी यूनिट पे, कितना टाइम लगाना है एक काम को करने में, ये सारे डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज ऑफ स्टैंडर्ड्स जो आप सेट कर सकते हो। उसके बाद आप काम को उसको इजीली एनालाइज कर सकते हो। स्टेप 2 इज मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। अभी तो आपने स्टैंडर्ड सेट किया, जब असली में काम होगा तो आपको उसको मेजर भी करना पड़ेगा, राइट? कि क्या स्टैंडर्ड्स के हिसाब से काम चला भी है या नहीं। अगर आपको दिखता है सही चल रहा है तो क्या करेंगे, नहीं चल रहा है तो क्या करेंगे, वो नीचे वाले पॉइंट्स पे सी। और वो आप किस बेसिस पे मेजर कर सकते हो? आप मेजर कर सकते हो जिस भी स्टैंडर्ड्स को आपने सेट किया उसके हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल, परफॉर्मेंस एक रिलायबल मैनर में होना चाहिए। बहुत सारे टेक्निक्स है, जैसे कि ऑब्जर्व करके, सैम्पलिंग, चेकिंग। अब देखो, एक सिगरेट फैक्ट्री है, इतनी बड़ी सिगरेट फैक्ट्री में लाखों करोड़ों सिगरेट्स बन रहे हैं एक एक घंटे में। अब हर एक सिगरेट को थोड़ी आप यूज करोगे,
चेक करने के लिए ऑफ कोर्स आप बैच को चेक करोगे। बैच यानी कि एक आपको आपको पता है कोई भी प्रोडक्ट आप लेते हो, सेकंड एग्जांपल था मेरे तरफ से, कोई भी प्रोडक्ट आप लेते हो आपको एक बैच नंबर दिखता है। अगर आप कंज्यूमर कोर्ट में या फिर आप कंज्यूमर केयर में कॉल करके बताते हो कि मेरे को XYZ बैच नंबर के प्रोडक्ट में प्रॉब्लम है, तो उसी मोमेंट पे वो लोग क्या करेंगे, उस बैच को पकड़ेंगे वो किस बैच में बना था। एंड ऑफ कोर्स अगर एक प्रोडक्ट में प्रॉब्लम आए तो देयर इज द टेंडेंसी, लाइक हाई टेंडेंसी कि बाकी के बैच के प्रोडक्ट्स में भी प्रॉब्लम आया होगा। तो अगर ये कस्टमर तक पहुंच गया तो इट्स वेरी बिग इशू। तो इसके लिए लोग क्या करते हैं, हर एक बैच का एक प्रोडक्ट सैम्पलिंग के तौर पे यूज करते हैं। अगर वो प्रोडक्ट ठीक हुआ तो वो लोग बैच को पास कर देते हैं फॉर सेल पर्पज। अगर नहीं होता है देन दे रीप्रोड्यूस दिस, बिकॉज ऑफ कोर्स देखो एक बैच का प्रोडक्ट डिफाइंस द होल बैच। इसको सैम्पलिंग वगैरह बोलते हैं। अभी देखो स्टैंडर्ड्स, ये देखो वॉच परफॉर्मेंस का क्वांटिटी के लिए मार्केटिंग में सेल्स वॉल्यूम, HRM में लेबर रिलेशंस एंड फाइनेंस एंड अकाउंटिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर्स देखते हैं। तो आपको डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स दिए हुए हैं और हर एक अलग डिपार्टमेंट में कैसे उस चीज को डील किया जाता है, किस कॉमन बेसिस पे, वो देखते हैं। We have step 3 that is comparing actual performance with the standards, जो मैंने आपको बताया कि जो एक्चुअली काम आया है उसको अब हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर। पहले सेट करेंगे, उसके बाद मेजर करेंगे, उसके बाद कंपेयर करेंगे कि सही हुआ या नहीं हुआ। फॉर एग्जाम्पल जो परफॉर्मेंस वर्कर ने किया था, जितने भी टर्म यूनिट्स वगैरह जो भी उसने प्रोड्यूस किए हैं, उसको मेजर कर सकते हैं इजीली कि मैंने जो सेट किया था स्टैंडर्ड क्या उसके बेसिस पे सही है या गलत। देन वी हैव एनालाइजिंग। अब हमारा टाइम है कि देखना कि क्या जो हमने काम दिया, जो हमने सेट किया वो सही है, वी नीड टू चेक। और अगर डेविएशन है तो नेक्स्ट पॉइंट में उसको कैसे हमें ठीक करना है वो भी हम लोग पढ़ेंगे। देखो critical point control. Now it is neither economical nor easy to keep a check on each and every activity. Is it possible? आप खुद से सोच के देखो, एक इंडस्ट्री तो नहीं, ऑर्गेनाइजेशन में कितने लोग काम करते हैं कि एक डिपार्टमेंट में भी, इज इट इवन पॉसिबल फॉर द मैनेजर्स और द एम्प्लॉइज टू कीप अ चेक ऑन ईच एंड एवरी individual? The answer is no. Now see what is it. Control should therefore focus on key result areas, that is KRA. Now वो key result areas क्या हो सकते हैं, एग्जाम्पल दिया देखो। एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर एग्जाम्पल एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है, वो देखेगा कि इंक्रीज अगर हो रहा है मेरा लेबर कॉस्ट, इसका मतलब पक्का कुछ गड़बड़ चल रहा है। फाइन। पोस्टल चार्जेस मतलब बेसिकली एक बेंचमार्क दिया हुआ है कि अगर इतना अमाउंट से एक्सीड करे मेरा लेबर कॉस्ट तो इसका मतलब पक्का से प्रॉब्लम है। ऑफ कोर्स सेल्स बढ़ेगा तो कॉस्ट बढ़ेगा तो वो बेयर हो सकता है, बट उतने ही सेल्स उतनी प्रोडक्शन में अगर मेरा कॉस्ट बढ़ रहा है लेबर का, दैट मीन्स देयर इज अ प्रॉब्लम। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन का मतलब क्या है कि बेसिकली आई एम टेलिंग यू, कोई ऐसा डेविएशन जो कि बुद्धि के बाहर है, मतलब जनरली नहीं होना चाहिए, एक्सेप्शनल बेसिस पे हो रहा है, देन वी आर गोना सी ओ गॉड, वी नीड टू एनालाइज दिस थिंग। ओके यहाँ पे इंस्टेंस दिया है, या सी thus if the plans lay down 2% increase in labor cost as an acceptable range of deviation, manufacturing organization only increase in labor to cost beyond 2% should be brought to the notice of the management. However, in case of a major deviation from the standard, say 5%, the matter has to receive immediate action of management on a priority basis. तो बोला कि अगर 2% के आसपास का डेविएशन जो कि हो सकता है तो उसको बस एक बार नॉलेज में दे देना, कान में दे देना मैनेजमेंट के। बट अगर उस बेंचमार्क डेविएशन से भी एक्सेसिव डेविएशन 5% इज अ वेरी ह्यूज कॉज अगर हो रहा है, तब इमीडिएटली उसी टाइम पे मैनेजमेंट को उस चीज के ऊपर एक्शन लेना चाहिए। देखो ये स्टेप्स की वजह से, क्या इन चीजों की वजह से एटलीस्ट पीपल वुड नो कि उनको कब एक्शन लेना है, कब नहीं लेना है, कब तक चल करके रहना है, कब आगे बढ़ना है। सो दिस इज इम्पोर्टेंट। वी आर द लास्ट प्रोसेस दैट इज टेकिंग करेक्टिव एक्शन। डेविएशंस अभी हमने समझा, अब एक्शंस भी लेना तो पड़ेगा। फाइनल स्टेप यही है कि हमें एक्शन लेना है। अगर कोई भी एक्शन लेना नहीं है तो इतना काम किया क्यों नहीं? देख रहे थे ना डेविएशन कहाँ आ रहा है और उसको कैसे ठीक करना है, तो हमें करेक्टिव एक्शन तो लेना ही पड़ेगा। ओके अब हो सकता है कि किसी कारण
हम ही आउटडेटेड रह गए, हमने ही अपने आप को अपडेट नहीं किया स्टैंडर्ड वाइज। तो अगर वो भी प्रॉब्लम होगी तो हम अपने स्टैंडर्ड्स को अपडेट करेंगे। मे बी 5% अब कॉमन हो गया, जैसे पहले 2% था। तो उन चीजों को हमें देखना पड़ेगा कि वेयर द प्रॉब्लम लाइज। ओके, सी कुछ करेक्टिव एक्शंस के एग्जांपल्स है। कॉज है, मान लो सबसे पहले मटेरियल अच्छा नहीं था, करेक्टिव एक्शन क्या ले सकते हैं? क्वालिटी स्पेसिफिकेशन, चेंज द क्वालिटी स्पेसिफिकेशन ऑफ द मटेरियल यूज की। अगर क्वालिटी डिग्रेडेड था तो हमें पहले क्यों नहीं पता चला? पक्का से हमारे पास जो हम लोग क्वालिटी को जो जस्टिफाई करते हैं, हम लोग क्वालिटी को जो चेक करते हैं, उस मेथड में कोई दिक्कत होगा, क्योंकि पहले ये पकड़ में नहीं आया। तो वी नीड टू चेंज दैट। अगर डिफेक्टिव मशीनरी है तो हमें कैसे नहीं पता चला? हम एग्जिस्टिंग मशीनरी को क्या करेंगे? रिप्लेस कर देंगे या रिपेयर करेंगे। अगर उसको रिपेयर मतलब अगर रिपेयर नहीं कर सकते तो रिप्लेस करेंगे। सो वील रिपेयर फर्स्ट ऑफ कोर्स। ऑब्सोलीट मशीनरी पहले चलता था, अब नहीं चलता है, कोई ऑप्शन है नहीं हमारे पास, उसको अपग्रेड करना पड़ेगा। डिफेक्टिव प्रोसेस, प्रोसेस ही खराब है, समझ नहीं आ रहा था, प्रोसेस को मॉडिफाई करना पड़ेगा। और अगर फिजिकल वर्किंग कंडीशन सही नहीं है तो उसको भी ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि इंफ्रा एंड एनवायरमेंट ऑफ वर्किंग शुड बी वेरी वेरी should be given very much of importance consideration. Now techniques of managerial control, अब क्या क्या अलग अलग टेक्निक्स हैं जो कि मैनेजमेंट को भी देखना चाहिए फॉर कंट्रोलिंग पर्पसेस या पर्पस। ओके, द फर्स्ट वन बीइंग ट्रेडिशनल टेक्निक्स। अब देखो, ट्रेडिशनल टेक्निक्स है और कुछ मॉडर्न। ट्रेडिशनल मतलब पहले होती थी, मॉडर्न इज नाउ वाला। अब क्या क्या है देखो, पहले क्या करते थे? पहले हम लोग ऑब्जर्व करते थे, रिपोर्ट्स निकालते थे, ब्रेक इवन एनालिसिस करते थे, एंड फाइनली बजट कंट्रोल ऑप्शंस निकाल के लाते थे। मैं बताती हूँ क्या होता है। देखो पहले क्या होता था ना, कि जो कंपनीज है वो शुरू से जो काम करते हुए आई हैं, काफी टाइम तक काम किया है, ठीक है। अब ये टेक्निक जो वो यूज करते थे, कहीं ना कहीं आज के दिन पे ऑब्सोलीट हो गए हैं, राइट। लेकिन ऑब्सोलीट मतलब पहले चलते थे, अब हट चुके हैं, खत्म हो चुके, ओमिट हो चुके हैं। अब टाइम के साथ उसको कोई यूज नहीं करता है। तो वो कौन कौन सी चीजें थी, यहाँ पे आपको 4 डिफरेंट पॉइंट्स दिए। मॉडर्न टेक्निक्स ऑफ कंट्रोलिंग वो है जो अभी रिसेंट ओरिजिन में उठाए गए, इट्स वेरी रिफ्रेशिंग। एंड ये सारी चीजें रिटर्न ऑन इन बेसिस पे वी डू थिंग्स। आप अगर कभी एक सब्जेक्ट पढ़ोगे जिसका नाम है FM, अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो तो आप पक्का, और 12 में हो तो अगले साल या मोस्ट प्रोबेबली उसके अगले बाद वाले सेमेस्टर्स में आप ये नाम सुन लोगे। इसका नाम है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। यहाँ आपको ये सब कुछ सिखाया जाएगा कि कैसे ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालते हैं, कि मैं अगर 10 रुपए कहीं इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो एट द एंड ऑफ द टाइम पीरियड फॉर विच आई एम इन्वेस्टिंग, मेरा रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या होगा। अगर मैं उसी 10 रुपए को अलग अलग जगह पे एनालाइज करूँ कि मेरे को क्या होगा क्या होगा क्या होगा विद रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट मीन्स, तो मुझे पता चलेगा कि सबसे ज्यादा रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट मुझे कहाँ, मेरे इन्वेस्टमेंट के ऊपर मुझे रिटर्न सबसे अच्छा कहाँ मिलेगा। ऑफ कोर्स अगर मैं एक नॉर्मल रैशनल इंसान हूँ तो मैं हाईएस्ट ROI के पास जाऊंगा। रेशियो एनालिसिस हर एक कंपनी में होता है, अलग अलग चीजों के लिए, डिफरेंट डेट के लिए होता है, क्रेडिट के लिए होता है, टर्नओवर के लिए होता है, रेशियोज निकालने के लिए, ठीक है। टू सी, टू चेक कि जो काम चल रहा है वो क्या सही पेस पे चल रहा है या नहीं। रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, अकाउंटिंग इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट हर एक फैक्टर में। मैनेजमेंट ऑडिट की मैनेजर सही काम कर रहे हैं कि नहीं। देखो स्टैट्यूटरी ऑडिट अलग हो गया, सेक्रेटरियल ऑडिट अलग हो गया, दिस इज मैनेजमेंट का ऑडिट। वो लोग खुद देखते हैं, खुद चेक करते हैं। ऑडिट इज बेसिकली समझो रीचेकिंग और चेकिंग बाय अ प्रिंसिपल। ओके, PRT CPM, अब ये क्या होता है एक्सप्लेन यू पक्का से। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम या MIS बोलते हैं, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिस्टम। नाउ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है, इससे व्हाट डू वी गेट टू नो। सी अभी हम लोग एक एक पॉइंट का नाम पढ़ रहे हैं, वी आर गोना टेक इट, वी आर गोना स्टडी इट अभी। See, ये दिख रहा है अभी, ये ब्रेक इवन एनालिसिस एंड ये सब मैं बताऊंगी क्या है इसे। रेशियो एनालिसिस ये सब जो है, सब कुछ मैं बताऊंगी। इन सब की बहुत सारी सम्स वगैरह भी हैं पर आपके सिलेबस में नहीं ऑफ कोर्स। Okay, so I'm gonna take this into the next chapter, sorry, next class. What is your work? Fine, I'm gonna tell you where, what is your work now.
So see, जितना भी पोर्शन हमने पढ़ा है अभी के अभी, जितना भी कुछ हमने पढ़ा है, just thoroughly आपको रीड करना. That is your task, your part of work you need to do. Of course, if you read it properly, time के साथ साथ अभी के अभी, if you end this thing, what are you gonna see? You gonna take it very positive. आपको समझ आएंगी चीजें. अगर कुछ नहीं भी आएंगी तो फ्रेश एंड फ्रेश मेरे से पूछ सकते हो. हाँ, तो आप क्लियर कर सकते हो चीजों को. डन. If you have any different problem, if you have any problem as well, you can just contact me up. That's it. Thank you guys. Bye.